students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 9, that is working with Animate CC. In this chapter we are going to study about how to work with Animate CC. So in this chapter we are going to study about symbols and animation. How many types of symbols are there? How to create symbols and how to generate animation. So let's begin. Symbols are instances. So symbols are product of Flash tool and are reusable images, animation, graphics, movie clip, sound file, font or buttons that reside in library crafted as objects. So symbols क्या होता है? Products होते हैं हमारे Flash tool के जो reusable image होती है, animations होते हैं, graphic movies होते हैं, clip movies जो clip sounds होते हैं, clip sound files, fonts, buttons जो रिसाइड करते हैं हमारी लाइब्रेरी में crafted में objects की तरह. So when these objects are transformed into symbols, जब ये objects transform होते हैं symbols में, उन्हें क्या मिलता है? एक place मिलता है लाइब्रेरी में उनके creation के time पे. The inclusion in the library enables their versatile use. वो उनके inclusion होता है लाइब्रेरी में, वो enable करता है उनके versatile use को numerous occasions पे within the same project or even different movies or animations. So upon creating a symbol, Flash meticulously stores it in a designated library. Flash कहाँ store करता है उसको? उसकी designated library में store करता है. Subsequently, whenever the object is employed within a project, जब एक object employ होता है एक project में, so एक क्या लेता है? एक form लेता है instance की. Now let's talk about types of symbols. There are of three types. तीन types के symbols होते हैं: graphic symbols, movie clip symbols and button symbols. Graphic symbols क्या होते हैं? They are these are the most basic symbols and are mainly used to create backgrounds. ये किस लिए use होता है? Backgrounds को create करने के लिए mainly. Now movie clip symbols. These symbols consist of multimedia features. इनमें multimedia features होते हैं जैसे आपके sounds हो गए, videos हो गए and graphics हो गए. Now button symbols. ये symbols respond to mouse clicks. ये symbols respond करते हैं mouse clicks को and add करते हैं interactivity animation में. Now creating symbols. How to create symbols? Any object on the stage can be used for the purpose of creating symbols. कोई भी object जो stage को होता है उसको हम use कर सकते हैं symbols को create करने के लिए. Follow the given steps to create symbols. Draw any object in Animate CC. आपको एक object draw करना है Animate CC में. Select करना है object using selection tool. Then click करना है convert to symbol option पे in modify tab. select convert to the symbol dialog box appear हो जाएगा symbol tool के साथ movie clip में by default. So choose करना है symbol type, write करना है symbol name and then click कर देना है OK पे. So a blue line will appear around the selected object. Blue line appear हो जाएगी आपके selected object के around. The symbol is now in the library of Animate CC. The object on the stage is the instance of the original object. जो object stage पे वो इसका instance है original object का. Track करना आपको symbol for further use. You can select the object's instance. आप object instance को select कर सकते हैं, make modification to it by right clicking. उसके modification कर सकते हो, उसमें right click करके select कर सकते हैं edit to options को. In order to exit from the symbol editing, click करना है आपको scene 1 पे and you will go back to the main movie timeline. आप कहाँ चले जाओगे? मेन मूवी टाइमलाइन पे चले जाओगे. Now generating animations. कैसे generate करते हैं animations को? Animation is a series of pictures. Series of pictures होते हैं जो showed in a sequence to display the movement of an object. ये क्या show करती है? Sequence show करती है. It shows the sequence of what it's showed in a sequence to display the movement. Display करने के movement एक object के. So in particular pattern and timings. In Animate CC, twinning is used to create animation. Twinning use होती है create करने के लिए animations. And this type of animation is known as twinned animation. इस type के animation को हम twinned animations कहते हैं. Motion twinning and shape twinning are the two types of twinned animation. Motion twinning और shape twinning क्या है? दो तरह की क्या आपकी twinned animations हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो एनिमेट सीसी में. क्रिएटिंग मोशन ट्विन. मोशन ट्विन को कैसे क्रिएट करता है? व्हेन वी क्रिएट मोशन ट्विन एनिमेशन वी डिफाइन एट्रीब्यूट्स सच एज साइज. हम एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, साइज हो गया, पोजीशन फॉर वन पॉइंट इन टाइम हो गया एंड दोस प्रॉपर्टीज आर चेंज फॉर अनदर पॉइंट इन टाइम. वो प्रॉपर्टीज चेंज होती है अनदर पॉइंट इन टाइम इन प्रोसीडिंग की फ्रेम्स. द फ्रेम्स इन बिटवीन आर क्रिएटेड. जो फ्रेम बीच में वो क्रिएट होता है ऑर्गेनाइज होता है एनिमेट सीसी से ऑर्डर में टू क्रिएट एनिमेशन. टू क्रिएट मोशन ट्विन फॉलो करना आपको गिवन स्टेप्स. तो फर्स्ट हम क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं ग्राफिक सिंबल
फ्रॉम एनिमेट सीसी लाइब्रेरी इट बिकम द फर्स्ट की फ्रेम। वो क्या बन जाता है, पहला की फ्रेम बन जाता है। टाइप करना आपको लेयर नेम इन द टाइमलाइन बाय डबल क्लिकिंग करके लेयर 1 पे एंड टाइटल पे, एंड टाइप करना है लेयर नेम। जस्ट दिस वो क्या करेगा, सिंबल रख देगा इन द फ्रेम 1 so of the layer. Now let's talk about the down. We are continuing that part only. Right click करना है आपको फर्स्ट फ्रेम पे लेयर 1 पे एंड देन चूज करना है क्रिएशन मोशन टू इनको फ्रॉम द मेन्यू जो आपके सामने अपीयर होगा। नाउ बाय डिफॉल्ट एक शेडेड स्पैन आ जाएगा, आपकी 25 फ्रेम्स अपीयर्स हो जाएंगे शेड स्पैन के टाइमलाइन पे, एंड द लेयर इज कन्वर्टेड इन टू टू इन लेयर। जो लेयर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टू इन लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। टू इन लेयर किस क्या होती है उसमें, इसमें वन और मोर मोशन ट्विंस होता है। आप क्रिएट कर सकते हो एनिमेशन को मूव करके प्ले हेड को डिफरेंट पोजीशन पे अलोंग द ट्विन स्पैन, एंड एडिट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को चेंज करके कलर और पोजीशन को। ड्रैग करना है आपको सिंबल टू द अदर एंड ऑफ द स्टेज। टू सी द मूवमेंट ऑफ द सिंबल क्लिक करना है आपको टेस्ट पे ऑप्शन में द कंट्रोल टैब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिएटिंग शेप ट्विन। कैसे क्रिएट करते हैं शेप ट्विन को। शेप ट्विनिंग इज डन टू मेक चेंजेस टू द शेप। किससे होती है, शेप को चेंजेस करने के लिए शेप पे ऑब्जेक्ट गिविंग इट एंटायरली न्यू शेप, जो उसको एंटायरली न्यू शेप देता है। शेप ट्विन हेल्प करता है इन मॉर्फिंग इफेक्ट, शो करने में मॉर्फिंग इफेक्ट, ट्रांजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन शेप टू अनदर। फॉलो करना है आपको गिवन स्टेप्स को अप्लाई करने के लिए शेप ट्विन को टू एन ऑब्जेक्ट। इन द फर्स्ट की फ्रेम ऑफ द टाइमलाइन आपको एक सर्कल बनाना है। क्लिक करना है 40 फ्रेम पे इन द टाइमलाइन, देन इंसर्ट करना है न्यू फ्रेम बाय क्लिकिंग ऑन इंसर्ट। इंसर्ट पे आप क्लिक करोगे, टाइमलाइन पे क्लिक करोगे, देन ब्लैंक, देन की फ्रेम्स, देन अ ब्लैंक फ्रेम विल अपीयर। ब्लैंक फ्रेम अपीयर होगा। ड्रॉ करना है आपको स्टार विद द डिफरेंट कलर। नाउ क्लिक करना है आपको फ्रेम 1 पे। फ्रेम 1 पे क्लिक करना है, देन राइट क्लिक करना है, देन सेलेक्ट करना है आपको क्रिएट शेप ट्विन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। नाउ क्लिक करना है आपको टेस्ट पे एंड द कंट्रोल टैब। उसको प्ले करने के लिए एनिमेशन को आप देखोगे कि सर्कल चेंज करेगा सामने with changing color patterns in the animation. Now let's talk about using motion guide tween. We use motion guide tween in Animate CC to define a trail or path which will be followed by an object. जो किससे follow होगा, एक object से follow होगा। मोशन गाइड ऐड करता है एक लेयर इन विच वी कैन डिफाइन पाथ, जिसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करता है पाथ। दिस पाथ इज नॉट शोन इन द फाइनल एनिमेशन। ये पाथ शो नहीं होता फाइनल एनिमेशन में। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू यूज मोशन गाइड ट्विन। क्रिएट करना है आपको सिंबल और ड्रैग करना है प्री एग्जिस्टिंग सिंबल को लाइब्रेरी से ऑन टू द स्टेज। राइट क्लिक करना है लेयर 1 पे एंड देन सेलेक्ट करना है ऐड क्लासिक मोशन गाइड को फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। एक न्यू लेयर अपीयर होगी आपके स्टेज पे, लेयर ऑन टॉप ऑफ लेयर 1 एंड विद द लेबल गाइड लेयर 1। नाउ ड्रॉ करना है आपके पाथ फॉर सिंबल्स ऑन स्टेज अगेन फ्रेम 1 एंड ऑफ गाइड लेयर 1 एंड यूज करना है पेंसिल और लाइन टूल। सिलेक्ट करना है आपको फ्रेम 40 ऑफ गाइड द लेयर 1 एंड इंसर्ट फ्रेम। नाउ क्लिक करना है आपको फ्रेम 1 पे ऑफ लेयर 1 एंड ड्रैग करना है अपने सिंबल को to the one line of the path to one end of the path while dragging a bubble appear होगा आपके सिंबल पे। क्लिक करना है आपको फ्रेम 40 ऑफ लेयर 1 एंड इंसर्ट कर देना है फ्रेम। नाउ ड्रैग करना है आपको सिंबल टू द अदर एंड ऑफ द पाथ, दूसरे एंड पे ड्रैग करके जाना है। देन अगेन बबल शोइंग गो राइट बिलो द पाथ, बबल राइट शो करता हुआ चला जाएगा पाथ से। नाउ सेलेक्ट करना है कोई भी फ्रेम 1 to 40 ऑफ लेयर 1। नाउ राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट कर देना है क्रिएट क्लासिक ट्विन पे। क्रिएट क्लासिक ट्विन पे करने के बाद फ्रॉम द मेन्यू, सो बिफोर दैट डू यू नो यू कैन व्यू योर एनिमेशन इफेक्ट बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर। आप एनिमेशन इफेक्ट को देख सकते हो जस्ट कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस करके। सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टीज पैनल में। व्हेन यू वांट टू रोटेट योर ऑब्जेक्ट और सिंबल while using motion guide, select करना आपको frame 1 and click कर देना orient to path checkbox under rotation select section in the properties panel. So to see the object moving along the defined path, press and आपको test movie in the control tab. So आपने देखा होगा आपका जो सर्कल है वो मूविंग पाथ से यहाँ से मूव होता हुआ एनिमेट होता हुआ आ जाएगा। movement of symbol along the path. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.